Haven't seen the effort that these guys have put in for last 5 6 years. Or before starting this startup, they had built another 2 3 failed startups. I mean, there was a point wherein Ashni, Piyush, Aman were asking me back to back questions for 1 hour, and 1 hour I didn't stop talking. अभी नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस भी रहेंगे, तो आपको लगता है गवर्नमेंट मतलब बदलती है तो उसका कुछ इफेक्ट रहेगा? All I care about is we want to solve a value, and we'll go at any lengths to make sure that we achieve that. मतलब मैंने तो बहुत सुना था यूट्यूब वीडियोस की भाई मोटिवेशन ये सब, एंड अलग अलग चीज़ें भी सुनी थी कि यार रेडी होना है बड़ा डिफिकल्ट है. यू डोंट नीड टू बिल्ड एन ऐप, यू डोंट नीड टू बिल्ड अ वेबसाइट. Hello everyone, I am Sanmeet and this is Shreyas and we'll be conducting this amazing podcast with Saurabh. सो सर वेलकम टू COAP. सो बेसिकली आप अपना ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए, जो आप जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को. Sure. So glad to be here. And about industry, I think it's more about the problem that we're trying to solve, which is college students, the ecosystem that they have, which a tier one college such as an IIT has. It's very different from a tier two, tier three college in terms of opportunities, in terms of education, in terms of mentors, and the entire ecosystem. So if you try to fit in an industry, it would be an overlap between a consumer internet and an edtech industry per se. Also, we have now internship job opportunities for students, so it'll be overlapping into three of different industries. So yeah, that's what we're trying to build. तो सर व्हाट इज इवेंट बिप, लाइक हमारे ऑडियंस को इन सिंपल टर्म्स में ये समझा दीजिए कि लाइक ऑन व्हाट बेसिस इट वर्क्स. So the goal is key special attention to college students. LinkedIn is for professionals, people they don't have a lot of time to dedicate it to college students. So you want to build an ecosystem for students which is dedicated and more focused, and students get the best attention ever. Maybe a mentor and internship jobs which are focused for a particular college students. So yeah, everything around that is what Eventbeep is trying to do. So, sir, how did your childhood experiences shaped your mindset regarding entrepreneurship? Yeah, I think that's a good question. And I think another thing I wanted to add was so, for example, the people that you see on the internet, successful people, people who have achieved a lot, you see students right out of college building successful businesses. You don't know their past. You don't know what's gone, let's say, when they were a child. And that's what shapes up. Even if you look at Bill Gates' story, if you look at Elon Musk's story, you see these people right now. You don't know what they were as a child, and they have been successful right because of the people that they were around. So yeah, that's been similar circumstance. My parents have been from business background. They've built businesses before on a smaller scale. My mom was an interior designer. My dad was into real estate. He had a factory of plastic manufacturing before, although it did not go well, not doing too well. Um, come from a very middle class, lower middle class background initially when they started, both were not doing well. But yeah, those shaped up my experiences. At table conversations, there were talks about managing employees, managing team members. So yeah, that did shape what I eventually ended up doing. तो सर ऐसे कोई मेंटोर्स, प्रोफेसर्स, कोई ऐसा बंदा जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो आपके या तो चाइल्डहुड में या कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ? Hi, I think whatever I am today, it's because of the people around me, because of the people that I see, their help, and largely जो भी आज मैं हूँ, it's the result of the entire people that I've been around. वो चाहे college में faculties हो, even if data हो, it has shaped me up to learn to understand कि ना बोलने पे भी you don't have to stop. So in some or the other way, it's been helpful. And even if people have been strict, it has made me become what I am today. So, सर इनिशियली लाइक जब स्टूडेंट फाइनल ईयर में या फिर थर्ड ईयर में रहता है, इफ़ ही थिंक्स कि हाँ मुझे इस सेक्टर में मुझे स्टार्टअप करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई कैन मेक मनी थ्रू दिस, उसने वो सोसाइटी में वो गैप फाइंड कर लिया है. सो सर, व्हाट इज़ द पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव
अगर वो आप ही के सेक्टर में है तो आप क्या बताना चाहते हैं उन्हें? So I think जब भी you're starting a new company or you're thinking of launching a new venture, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि यार मैं ऐप बनाऊंगा, मैं let's say I'll build a website or I need to invest some money, coders लेने पड़ेंगे to let's say solve a particular problem. दैट्स द जनरल माइंडसेट कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं होता। लेट्स से यू कम अप विद द प्रॉब्लम। फॉर इंस्टेंस द प्रॉब्लम इज कि यार हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, ठीक है, एंड आई वांट टू लेट्स से एड्रेस दैट। आई वांट टू हैव प्रोफेशनल psychologist who can assist with their mental health situation. It's let's say a startup, ठीक है। Now टिपिकली लोग क्या सोचते हैं कि यार इसके लिए तो ऐप बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी टू सॉर्ट ऑफ गेट स्टार्टेड, बट नो, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। For example, there are WhatsApp groups, Telegram groups. Start there. You don't need to build an app. You don't need to build a website to get started. Start with a WhatsApp group. बोलो कि anonymous होगा, or a Telegram group. You join and nobody would know. Whenever you want something, we will connect you with a counselor and you can work on Zoom calls या फिर Google Meet anonymously. आप join करके आपका concern share कर सकते हो। See कि traction कैसे आता है. See if they are really liking it or not. And that's when you actually और स्टूडेंट्स ले लो और ट्रैफिक ले लो ऐप पे, चार्ज पीपल फर्स्ट, मे बी प्री बुकिंग्स ले लो इफ यू वांट टू वैलिडेट द आइडिया। एवरी टाइम यू फील कि यार ये बहुत सही बिजनेस बन सकता है, द बेस्ट वे टू टेस्ट इट इज आस्क देम फॉर मनी। उनको बोलो पैसे दो ये सर्विस के लिए, आई एम गोइंग टू चार्ज यू 200 रुपीज। व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दो। और वही ना, डिपेंड्स ऑफ हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज। इफ इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम दे विल पे मनी। इफ इट्स नॉट, then yeah, no matter how much money you put on it, they're not going to pay. The moment you ask them to pay, you'll realize it if it's a big enough problem to be solved or not. So that's one thing that you need to understand. For example, अगर डंजो और लेट्स से जेप्टो, ठीक है, अब Zepto is too big now. Let's say whenever Dunzo founders started the venture, they did not start कि चलो ऐप डाल दो। उन्होंने पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने नेबर्स का, फैमिली फ्रेंड्स का, कि यार कोई भी चीज चाहिए आपको ग्रुप पे डाल दो। यू पुट इट ऑन द ग्रुप एंड देन वील हैव आवर डिलीवरी गाइज, और हम खुद जाके वो लेके आएंगे, ठीक है। एंड फिर आप पैसा एक्स्ट्रा 20 रुपए दे दो। वो एक खुद आप ट्राई करके देखो, अगर लोग बोलते हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा 20 रुपए ले ले कोई बात नहीं, देन इट्स वैलिडेटेड। बट वो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो मैं खुद लेके आ जाऊंगा, मेरे को नहीं करना। सो वंस दैट डंजो का ग्रुप स्टार्टेड बीइंग वायरल, उन्होंने और लोग ऐड किए उनके नेबर्स ने कि और लोग डाल, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाता है घर पे। एंड देन दे गॉट सो मच ट्रैफिक, देन दे बिल्ड द ऐप। ये बोल के कि यार बहुत अब मैनेज होने को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, दैट इज व्हेन आई एम गोइंग टू बिल्ड एन ऐप एंड वेबसाइट। सो वैलिडेट योर आइडिया बिफोर इवन बिल्डिंग और राइटिंग अ लाइन ऑफ कोड इफ यू आर अ कोडर, और इवन इन्वेस्टिंग एनी मनी, जस्ट बाय फेकिंग इट अंटिल यू मेक इट। ओके सर, अगले क्वेश्चन के लिए जैसे कि हमें पता है कि आप पहले इंक्यूबेशन सेंटर्स में थे काफ़ी साल, बट अभी आपने मूव आउट किया है, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स सही में हेल्पफुल होते हैं या इट्स जस्ट अ फेज की बना है कि करना है तुमको स्टार्ट इंक्यूबेशन से How does स्केल the अप करते हैं? incubation works, and is it really helpful? So, what you need to understand, especially when you're a college student and you're starting a business of your own, it's really difficult for someone new to believe in you, ठीक है। उनको लगता है कि आप तो कॉलेज के बच्चे हो, अभी तो पैदा हुए हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एंड आप आ गए मार्केट में। वो चाहे आपको कुछ बेचना है, वो चाहे आपको इन्वेस्टर्स लाने हैं, वो चाहे आपको टाइम देना है मेंटर्स के थ्रू भी, कि यार ये सच्ची में कुछ, मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक कोई सेलिब्रिटी और एक मेंटर है हु इज रिस्पेक्टेड इन हिज और हर फील्ड, ओके, एंड ही सेज कि आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई विल गिव माई टाइम टू पीपल हु आर वर्थ इट। तो इंडिविजुअली ये करना बहुत डिफिकल्ट है, आई मीन पॉसिबल है बट इट्स डिफिकल्ट। लेट्स से व्हेन यू गेट इनटू एन इंक्यूबेटर, एक एक्ट्स एज अ स्क्रीनर कि ये बंदा सच्ची में इंटरेस्टेड है कुछ करने के लिए, ठीक है, ये बंदा और बंदी रियली वांट्स टू डू समथिंग विथ हिज स्टार्टअप और आइडिया, एंड
अच्छे मोटिवेशन से। टू गेट इनटू एन इंक्यूबेटर यू नीड टू लेट्स से स्टार्ट अ कंपनी, रजिस्टर करनी पड़ती है, सीरियस होना पड़ता है थोड़ा टू गेट इनटू दीज एक्सेलेरेटर। सो दे जस्ट एक्ट एज अ स्क्रीनिंग टूल, ठीक है, टू गेट मेक श्योर दैट अच्छे लोग ही आ रहे हैं अंदर। सो वंस यू गेट इनटू एन इंक्यूबेटर यू हैव एक्सेस टू सो मेनी मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, एटलीस्ट सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि अच्छे सही ट्रैक पे चल रहे हो। सो 100% ऑल ऑफ देम आर यूजफुल बिकॉज दे गिव यू एक्सेस जो आपको खुद से नहीं मिलने वाला। तो इट एक्ट्स लाइक अ लाइफ सपोर्ट कि अगर इवन इफ नहीं आ रहा है, मतलब पैसा नहीं है स्पेस के लिए, you need to have a serious environment. So these people, incubators, I mean, we have benefited a lot. वो चाहे इन्वेस्टर्स हो, वो चाहे मेंटर्स हो, स्पेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इवेंट्स करना हो, so it's been lot helpful and you have a office space so people take you more seriously. सो सर इनिशियल स्टेजेस में जब हम रहते हैं तो तभी कोई हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके साथ आप डील कैसे करते हैं? मतलब द क्वेश्चन लाइक प्रॉब्लम्स तो आने हैं, इनिशियल स्टेज हो, मिड स्टेज हो या लेटर स्टेज हो, एंड इट्स हार्डर देन यू इमेजिन। इट्स लाइक मतलब फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने तो बहुत सुना था यूट्यूब वीडियोस की भाई मोटिवेशन ये सब, एंड अलग अलग चीज़ें भी सुनी थी कि यार रेडी होना है, बड़ा डिफिकल्ट है, अज्यूम द वर्स्ट वाला चीज़। सो आई हैड पहले ही आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट। मैंने स्टार्ट करने से ही पहले ये सोचा था कि भाई ये कितना भी हार्ड हो, इट लेट इट बी एज हार्ड एज पॉसिबल। मैं चाहे जेल चला जाऊं या फिर कुछ भी हो जाए, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा बिकॉज हाँ, उस लेवल का प्रिपरेशन यू नीड टू हैव बिफोर स्टार्टिंग बिकॉज वंस यू गेट इन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर सेल्फ बिकॉज इतना हार्ड है। एंड सोशल मीडिया पे दिखाते नहीं है, इट्स लाइक सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं बट द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इट्स नेक्स्ट लेवल। सो the way that I keep myself motivated during these problems were, so I have couple of अच्छे habits that मैंने पहले से ही बना के रखे since I was in 12th grade or so, कि I write goals every day. Whenever I wake up I write 10 goals that I want to achieve in my life. And अगर मतलब लेट्स से लास्ट वीक ही मैंने देखा कि जो मैंने 4 साल पहले लिखा था ऑल ऑफ दैट हैज कम ट्रू। ऐसा नहीं कि मैं देखते रहता हूँ बट गलती से खुल गई बुक एंड आई सॉ ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटेड। आई डिडंट इवन सी, सो एक बार मैं गोल्स लिखता हूँ मैं वापस देखता नहीं हूँ। सो ये हैबिट एंड प्लस विजुअलाइजेशन, हाउ वुड आई वांट माय लाइफ टू लुक like in let's say next 4 or 5 years, so it always stays keeps me on track. For instance क्या होता है, मैं लिखता हूँ कि I want to be fit or let's say I want to be बहुत ही active on in the goal. Let's say I want to win a competition related to sports or something, and then फिर मैं वापस सो जाता हूँ एग्जाम्पल। फिर वो गिल्ट होते रहता है लाइक 1-2 दिन मैं रोज लिख रहा हूँ कि मुझे ये करना है एंड मैं कर नहीं रहा हूँ। सो इट कीप्स यू ऑन ट्रैक अगेन कि नहीं आज तो मैं जाऊंगा। सो इट पुशेस यू मोर, लेट्स से दैट ऑफ दैट particular habit. So that's something that has motivated me during tough times. But what you need to understand is there is no way of getting around those tough situations, obstacles. वो तो आनी ही है, it's natural. Just enjoy it. मतलब मजे करो, like I तो laugh at let's say the biggest problems that come. सर जैसा एंटरप्रेन्योरशिप का एक सोशल मीडिया पे ऐसा इमेज है कि तुम फरारी में आ रहे हो, आजू बाजू लड़कियां हैं, लैविश लैविश लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल है, तो ऑब्वियसली वैसा तो नहीं होता है। एक इलॉन मस्क का लाइन भी है हाँ, लाइक entrepreneurship is like eating a glass and staring into the abyss of death. So like मतलब reality रियलिटी क्या reality क्या है है? और जो दिखाया जाता है वो कुछ हद तक ट्रू है या वो सब ढोंगी है? नहीं नहीं, सब तो ढोंगी है सब एक देखो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन आप लोग जो देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब कोई बिल्डिंग देख रहे हो, ठीक है, लेट्स से एनी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन और एनी टिपिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्काई स्क्रेपर, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज 3-4 years उसका बस ग्राउंड वर्क चलता है, यू कांट इवन सी कुछ हो रहा है, वो बस लगा के रखते हैं साइड में एंड दे डिग डीप, डिग वेरी डीप, and it takes 4 or 5 years you can't see anything.
कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हैं लोग 4 साल से बस खुदाई कर रहे हैं एंड दे आर बिल्डिंग फाउंडेशन। अचानक यू कम आफ्टर अ मंथ और टू, यू सी द एंटायर बिल्डिंग हैज कम अप अचानक से। तो मुझे लगता है भाई ये क्या हो गया। So similarly is life and startups especially when they're work in progress, you can't see them, they're like बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, बहुत they're putting their efforts in and out, but let's say 4 5 6 years have gone in to the hard work and then अचानक दिख जाते हैं। यू फील लाइक भाई ये तो बहुत सही है, इन्होंने अभी स्टार्ट किया, अचानक से दिख गए, वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही ऑसम, बहुत कूल, बट यू हैवंट सीन द एफर्ट दैट दीज गाइज हैव पुट इन फॉर लास्ट 5 6 years, और बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप दे हैड बिल्ड अनदर 2 3 फेल्ड स्टार्टअप्स। सो ये आप लोग को दिखता नहीं, स्पेशली पीपल ऑन सोशल मीडिया। ऑब्वियसली हु वुड वांट टू शो देयर वीकनेस, किसको दिखाना है कि भाई मेरी लग रही है इधर, या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा और इतने सारे इश्यूज है। एवरीवन शोज देयर बेस्ट इंस्टाग्राम पे, दे शो कि भाई देयर रियल लाइफस्टाइल, दे डोंट शो कि भाई मेरे घर में खाने को पैसे नहीं है और इधर मैं फरारी के साथ व्लॉग्स डाल रहा हूँ। सिमिलरली स्टार्टअप, सो दे शो व्हेन थिंग्स आर गुड, दे शो व्हेन थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, just to show perception, because they want investors, they want people to give them business, they want people to put money if it's an IPO वाली कंपनी। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, अगर मेरे को शेयर्स मेरे ऊपर डालने हैं तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा कंपनी इज गोइंग रियली ग्रेट, डालो पैसे एकदम आराम से डालो, आई वोंट शो माय बैड साइड। सो दैट्स द परसेप्शन, यू कांट सी द एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ही हार्ड। ऐसा कोई दिन था जब आपको लगा कि नहीं यार नहीं हो रहा है, मैं क्विट करना चाहता हूँ अभी, एंड समथिंग मिरेकल हो गया जो मेड यू मोटिव, मतलब जिसने आपको मोटिवेट किया कि फिर से नहीं, आई कैन पुश माई सेल्फ? तो मैंने जैसे आई मेंशन्ड आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे मैं कॉलेज में था, मैं बस इसका ही प्रिपरेशन कर रहा था दिमाग में कि लेट एवरीथिंग गो रॉन्ग बट आई विल नॉट गिव अप। एंड प्लस वीडियो में भी दिखाते हैं ना कि यार डोंट गिव अप, यू स्टैंड वंस अगेन। एक बार फाइट लग गई तो वही गिरोगे, बट उठना है, गिरना नहीं। तो वही सब था एंड आई थिंक आई जस्ट डिड इट, विच इज लाइक कि अगर नो मैटर कितने बार मुझे मार के गिरा दो, आई एम गोइंग टू स्टैंड अप एंड डू इट ऑल ओवर अगेन। तो वो बहुत टाइम्स हुआ, लेट्स से व्हेन आई स्टार्टेड मेरा इवेंट भी, जो पॉलिटिशियन वाला चीज था, हमने बोला कि बहुत बड़ा इवेंट रखेंगे, हम सारे स्टार्ट सोसाइटीज में जाएंगे, हर चीज करेंगे। हमने वो एरिया के 150 से 200 कंपनी से बात की हमें स्पॉन्सर करने के लिए, कि हमें पुणे ही था। हाँ, सो तो सारे ब्रांड्स के पास गए कि हमारा हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट रख रहे, स्पॉन्सर करो। सारे हमारे पास 10 लोगों की टीम थी जो मेरे ही फ्रेंड्स थे। तो बोले कि छोड़ यार, अपन एक काम करते, अपने सोसाइटी में ही खेल लेते, एक एक और टीम को बुला लेते। मैंने बोला नहीं, मैंने वीडियो में देखा है, रुकना नहीं है। तो द मोमेंट आई सेड दिस, द नेक्स्ट कंपनी दैट वी वेंट टू गिव अस द स्पॉन्सरशिप, ये बोल के कि ठीक है हमारी तरफ से ये फ्री तुम्हारे लिए सब। तो फिर टीम गॉट मोटिवेटेड एंड देन every every brand that we went into, they sponsored us. का जो ऐप है इवेंट वीव, सो इट्स बेसिकली अबाउट कॉलेज इवेंट्स। तो जैसे हमारे कॉलेज में भी इवेंट है पुणे स्टार्टअप फेस्ट, तो हमारी भी टीम बेसिकली एक एक पोर्टफोलियोज है एंड दे वर्क फॉर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, मतलब एक स्पेसिफिक उनका जॉब होता है, वो काम करते हैं एंड ये टीम पूरा एक फेस्ट बनाती है। तो जैसा आपने बोला कि फाउंडेशन तुमको दिखता नहीं है 4 5 साल तक, एंड देन यू सी द रिजल्ट 1 2 महीनों में। तो ये जो इवेंट्स है, जो कॉलेज इवेंट्स में इतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्या ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है तुम्हारे स्किल्स में या टीम स्पिरिट में बिल्ड करने में? Definitely, I would suggest कि वो ज़्यादा करो rather than attending college, because यार this is the real insight into the real world. You are actually meeting people who are professionals. You are meeting people who have seen the world and industry. You are talking to and convincing people to give you money, and that is how harsh the real life is. तुम lectures में बैठोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। You are not going to realize what the true world is. The moment तुम placements के लिए बैठ रहे हो, these people who have been active in clubs, they know कि क्या बात करनी है जब मैं placements में बैठूंगा, interviews में क्या बोलना है, what does the industry want, all of these knowledge is there to people who are active, especially clubs में, because this is one of the only insight that you get into the real world. थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में घुस रहा हूँ सर। रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली कॉलेज में आपके रहे होंगे कुछ क्रशेस और वट एवर, उसको और आपका इतना जो डेडिकेशन था टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कैसे आपने टाइम मैनेज किया? या यार सो
खुद के लिए टाइम नहीं होता। लाइक मैं तो 1 वीक हो जाता है मैंने अपने आप को देखा भी नहीं है। लाइक मैं दिखता कैसे हूँ? सो इट्स मतलब टाइम तो मिलता है नहीं, बट yeah, it's really difficult. I mean, relationships and startups don't go hand in hand, but there and now you have time to, let's say, get into, you know, relationship या फिर look for someone because तुम्हारा पूरा life तुम्हारा startup है। So yeah, that's how it has been. But there has been instances ki, given ki I've been working hard, and as nature, there have been girls who have been into, let's say ki getting along. But that's more about it. I mean, nothing that you don't have basically time. But yeah, you should balance. क्योंकि I think that is one of your youth being young and entirely 6 to 7 years तुम्हारे जा चुके होते हैं. So by the time let's say your startup sees anything, you are already old हो चुके हो. So there's no fun, and I feel you should take time to sort of balance out into relationships also, because it's difficult. It's difficult if you don't to build a good relationship over the period of time if you don't get into a relationship. So I would suggest कि do get into a relationship, because you need to have that experience कि how are you going to तुम्हारा household कैसे बनाने वाले हो. So early अगर तुम्हें experience आ जाएगा, and you'll experience into relationship यार क्या है उसका? So you will need, you will have a better life. So, sir, we have seen your pitch, 13-minute pitch of Shark Tank on YouTube. So, what was the real time of that pitch? 1 hour I didn't stop talking. And after everything that I answered, they had 10 more questions. Everyone had, let's say, in terms of numbers, market scenario, competition, it was in depth, and they know because they have built it in past and they know everything about that business. So before coming to that conclusion, they didn't stop asking questions. So it was very grilling. So, you have closed deals with Aman, Ashnir, and Piyush, sir, right? So, can you elaborate like what the relationships that you have forged with these investors and how your growth with Event Beep has emerged? So with so I think we had investors before even sharks coming in. एंड वन थिंग दैट वी हैड लर्नड इज कि यार बिजनेस तो अपने को ही बनाना है, ठीक है? दे आर यार वो लोग पैसे भी देंगे, हेल्प भी करेंगे, बनाएंगे भी. सो इट्स नॉट फेयर. इवन लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में, ठीक है, डू यू गेट इनटू कंपनी का मैनेजमेंट कि यार नहीं वो करना चाहिए? एंड द रीजन दैट यू आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू शेयर मार्केट इज तुम्हें पैसा बनाना है. तो सिमिलरली इज देयर माइंडसेट कि यार मैं पैसे डालूं और मेरा पैसा बन के आए बाद में. दैट्स ऑल आई केयर अबाउट, and that's what they care about. So as such, no investor whenever they come in is going, they'll definitely open doors for you when you need it, but eventually they don't come into the business. But for us they have been really helpful with advices, guidance कि यार ये करो ये मत करो, you are going on the right path, appreciating whenever it's due. Whenever we received acquisition offers, उसमें हमें guidance देना कि यार ये करो ये मत करो. These are the ways based on their experiences, and हाँ, and it's limited to that, and that's what they do. सर जब उन्होंने ऑफर दिया था तब मतलब हमने तो 13 मिनट का ही पिच देखा है, हमें तो बाकी नहीं पता. तो उसमें एक क्लिप था कि आप बैक स्टेज गए, आप तीनों फाउंडर्स, एंड आपका बोलना था कि लेट्स हैव वन इन्वेस्टर ओनली, फोकस्ड रहेगा, अगर हमने 3 को लिया तो वो पूरा बदल देंगे, ये ऐसा आपका प्रिडिक्शन था. एंड सॉर्ट ऑफ इट केम ट्रू कि यू आर नाउ मोर फोकस्ड ऑन इंटर्नशिप्स. तो मतलब आप उसके लिए पॉजिटिव है कि वो सही चीज़ हुई, या मतलब नहीं होना चाहिए था वो? कॉन्वर्सेशन ऐसा था कि अगर हम तीनों शार्क्स लेंगे तो यार कोई एक बंदा हम पे फोकस नहीं करेगा. दे विल बी लाइक यार वो भी तो है, वो कुछ हेल्प नहीं कर रहे, वो भी तो है, वो हेल्प नहीं कर रहे. सो इफ वी हैड ओनली वन शार्क, दे वुड हैव गिवन अस गुड अटेंशन कि हाँ यार मतलब तुम्हारे पास मैं हूँ, तो आई एम गोइंग टू गाइड यू एंड हेल्प यू एंड सपोर्ट यू. इंस्टेड अगर हम 3 लोगों को साथ में ले रहे तो एवरीवन इज लाइक वो भी तो है, वो हेल्प करेंगे. तो ये था अप्रोच. बट हाँ, आई मीन आई डोंट नो इफ आई हैवंट सीन कि एक ही शार्क होता है तो कैसे होता था. अभी नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस भी रहेंगे, तो आपको लगता है इफ गवर्नमेंट मतलब बदलती है तो उसका कुछ इफेक्ट रहेगा स्टार्टअप्स को Entrepreneurship पे. प्रमोट होने पे या स्टार्टअप्स प्रमोट होने पे?
यार मैं इतना पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूँ कि यार कौन सी गवर्नमेंट क्या है. ऑल आई केयर अबाउट इज वी वांट टू सॉल्व अ वैल्यू एंड वील गो एट एनी लेंस टू मेक श्योर दैट वी अचीव दैट. गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, आई डोंट, I mean, unless it's something which has to do with fintech or something which is really working closely with government permissions, I we don't face as such a challenge. And education है तो government is always supportive. So I mean, we'll do our job with the help of government or without. तो वो तो करना ही है, and I think that should be the case because once you start depending on government and the system which is designed to govern the entire nation, you will be in something which is not predictable as a business. दोनों को अलग रखना ही बेटर है. तो हाँ, बट बेटर इज कि जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस. गवर्नमेंट से आई मीन हेल्प तो बहुत मिलती है, सपोर्ट तो मिलता है, but we haven't faced any obstacles as such. That as long as that is there, there is no issue. So thank you, Saurabh, for joining us today, and we hope that you will surely associate with PSF. Thank you so much. Thank you so much, sir.